Ma'am, the thoughts of a person regarding something is essay. Thoughts of a person regarding something is an essay. Yes. Yes, we Views, can say that. thoughts, views. Yes, we can say that. These are the thoughts of a person regarding something is an essay. अच्छा, thoughts को तो हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन when a person puts his thoughts regarding something into words, उन words को हम ऐसे कहते हैं. Okay, so yes, I got your point and that was fine. All right, G, no problem. Let's come towards a few different definitions of essay. आप लोग को आपको स्क्रीन पे विजिबल है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है. सो लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर फर्स्ट. इसको इधर से रीड करते हैं, देन वी विल डिस्कस द पॉइंट्स. The first definition is an essay is generally a short piece of writing outlines the writer's perspective or story. जिस तरह आपके किसी क्लास फेलो ने अभी बोला कि these are the person's thoughts, यानी कि किसी राइटर का कोई पर्सपेक्टिव होता है, किसी कोई स्टोरी होती है जिसको वो एक पीस ऑफ पेज पे या लिखता है, उसको वर्ड्स में पुट करता है अपने पर्सपेक्टिव को या अपनी थॉट्स को. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं essay. ठीक है, that is an essay. If we come towards the second definition, essay is derived from a French word essayer. ठीक है, it is derived from a French word essayer, which means to attempt or to try. ठीक है, essay को हम ये भी कह सकते हैं to attempt or to try. To attempt to write something, to try to put in words something. An essay is derived from a French word essayer, which means to attempt or to try. An essay is a short form of literary composition based on a single subject matter and often gives the personal opinion of the author. Again, the same definition but twisted a little bit into different words. Again, this is एक literary composition होता है, एक ठीक है, एक written passage होता है, किस चीज़ का, एक authors का personal opinion होता है किसी भी चीज़ के बारे में. ऐसे के टॉपिक्स की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर किसी कोई ऑथर है, उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर वो उसको एक रिटन फॉर्म में लिखे, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट एन essay. Look at the third definition. An essay is a short piece writing, either formal or informal, which expresses the author's argument about a particular subject. A formal essay has a serious purpose and highly structured organization, while an informal essay may contain humor, personal recollections and anecdotes, and any sort of organizations or from which the author wants. Again, the same definition, more twisted into different words. ये दिस इज लाइक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है. यू आर अवेयर ऑफ द टर्म फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल एसेस का ये होगा कि एक सीरियस पर्पस होगा या कोई सीरियस इशू पर होगा तो वो फॉर्मल. जिस तरह के अगर हम किसी कश्मीर इशू पे अगर हम कोई ऐसे लिखते हैं या हम पैलेस्टाइन इशू पे कोई ऐसे लिखते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी अ फॉर्मल ऐसे, क्योंकि उसका सब्जेक्ट होगा वो एक सीरियस सब्जेक्ट होगा और वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा. उसमें हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होगी ताकि फैक्ट्स एंड फिगर्स में कोई गलती ना हो. लेकिन अगर हम इनफॉर्मल ऐसे की बात करें तो इनफॉर्मल ऐसे में इट कैन कंटेन ह्यूमर, इट कैन कंटेन पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं. ठीक है, कोई उसमें कोई हिस्ट्री के कुछ हम लिख सकते हैं, कुछ भी डेट्स वगैरह लिख सकते हैं. और उसकी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम रिलेटिवली फॉर्मल ऐसे की बात करें तो रिलेटिवली इसकी ऑर्गेनाइजेशंस उससे फिर थोड़ी सी लूज होती है. ठीक है, उसमें हमें कोई इतनी सीरियस या हाईली स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डिमांड नहीं होती. सो दैट इज एन इनफॉर्मल ऐसे. Towards the last definition, an essay is a piece of writing, usually formed from an author's point of view. Essays are non-fictional but often subjective. While expository, they can also include narrative. Essays can be literary criticism, political manifestos, and learned arguments, observations of daily life, recollections, and reflections of the author. अच्छा, इस डेफिनेशन में बेसिकली उन्होंने आपको एक पॉइंट आउट कर दिया है टाइप्स ऑफ ऐसे की तरफ कि ऐसे हमारे पास नैरेटिव होती है, हमारे पास एक्सपोजिटरी हो सकती है, सब्जेक्टिव होती है, फिक्शनल होती है, नॉन फिक्शनल होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है. ठीक है, और फिर उन्होंने एसेस कैन बी लिटरेरी क्रिटिसिज्म. इधर वो हमें एसेस के सब्जेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि ऐसे हम किसी भी सब्जेक्ट पे हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे वो किसी पे क्रिटिसिज्म है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल एसेस हम लिख सकते हैं, किसी हम करंट इश्यूज पे लिख सकते हैं एसेस, हम किसी आर्ग्यूमेंट्स को हम एक ऐसे की फॉर्म दे सकते हैं, कोई चीज़ हम डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन के, फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ पे ऐसे लिख सकते हैं. हमारे कोई फ्लावर, ठीक है, आप किसी फ्लावर को देखते हैं, आप उस फ्लावर पे एक पूरा ऐसे लिख सकते हो. आप जो आप उस फ्लावर के बारे में ऑब्जर्व करते हो, जो आपके माइंड में आता है, आपके जितने भी थॉट्स हैं, आप उसको एक ऐसे बना सकते हो. ठीक है,
तो ऐसे का सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इट्स नॉट लिमिटेड, इट्स बहुत ब्रॉड टॉपिक है ऐसे, और इसके इसी तरह इसके जो टॉपिक्स है सब्जेक्ट्स है वो भी बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो दीज वर अ फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ऐसे। क्लियर है आपको? आई एम श्योर इट्स क्लियर। Coming towards the types of essays. Types of essays ki, I will be discussing 4 types of essays with you. They are narrative essays, descriptive essays, expository essays, and persuasive essays. Let's discuss them in detail. Okay. Narrative essays, सामने मैंने इसके लिखा है टेलिंग अ स्टोरी, जिससे इस ऐसे की डेफिनेशन तो क्लियर हो जाती है कि ये the piece of writing where a writers tells a real life experience, ठीक है। एक राइटर्स अपने कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके बारे में अगर राइटर लिखता है तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नैरेटिव एसेज, ठीक है। नैरेटिव एसेज में इट्स बेसिकली टेलिंग अ स्टोरी। एक ऑथर, एक राइटर अपने वर्ड्स में अपनी कोई लाइफ का, कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस, अपने लाइफ का, किसी और के लाइफ का भी हो सकता है, बट एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस को वो जॉट डाउन कर रहा होता है, उसको एक वर्ड फॉर्म दे रहा होता है। सो दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नैरेटिव एसे। व्हाइल टेलिंग अ स्टोरी may sound easy to do, the narrative essay challenges students to think and write about themselves. When writing a narrative essay, writers should try to involve the reader by making the story as vivid as possible. The fact that the narrative essays are usually written in the first person helps engage the reader. I sentences give readers a feeling of being a part of the story. A well-crafted narrative essay will also build towards drawing a conclusion or making a personal statement. ठीक है, narrative essays, ठीक है, दे बोलने में जितनी सिंपल लग रही है उतनी सिंपल ये होती नहीं है। देखिए, अगर आप नैरेटिव ऐसे लिख रहे हो, अब एक लेट सपोज हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, किस पे हम नैरेटिव ऐसे लिखे। नैरेटिव ऐसे आपका हो सकता है योर फर्स्ट डे, आप लाइक टॉपिक वुड बी माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, ठीक है, ये आपका एक टॉपिक होगा। तो जब आप इस पे ऐसे लिखोगे तो दिस इज नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग, आपने नहीं करनी कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ, ठीक है, नो दिस, ठीक है। आपने इस स्टोरी टेलिंग को एक ऐसे अंदाज में करना है, एक ऐसे तरीके से करना है कि जो रीडर है आपके ऐसे का, जो पढ़ रहा है, उसको ऐसे लगे कि वो भी उस जगह पे मौजूद था, कि शायद वो भी जब आपके कॉलेज का फर्स्ट डे था तो वो रीडर आपके साथ था और वो सब कुछ वो पिक्चराइज कर सके, ठीक है। सो दिस रिक्वायर्ड टेक्निक्स, ये भी एक आर्ट है कि व्हेन यू राइट इट इन सच अ वे दैट द रीडर can reader feel himself as a part of that story, कि शायद मैं भी इस स्टोरी में कहीं मौजूद हूँ, शायद ये स्टोरी मैंने भी कहीं पे एक्सपीरियंस की हुई है। सो दिस इज अ नैरेटिव essay. The writer tells a story about a real life experience, but in such a way that the reader feels part of that experience. Okay? सब्जेक्ट इसके हो सकता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है my first day at college. You can write about my last farewell party, ठीक है। You can write about a visit to a museum, a visit to a zoo, any कोई visits के बारे में आप लिख सकते हो। तो ये ऐसी चीजें जो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, और इस पे जब आप लिखते हो तो वो क्या होता है, वो आपके नैरेटिव एसेज होते हैं। आप बेसिकली कुछ स्टोरी, कुछ एक्शंस होती है, इवेंट्स होती है, आप उनको नरेट कर रहे होते हो, ठीक है, आप उनको बता रहे होते हो, बट फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स के मुताबिक आप उनको बता रहे होते, एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू आप उसको बता रहे होते हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे होते हो, तब वो जाके ऐसे बनता है, ठीक है। और क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मेट होता है, वी विल डिस्कस इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। कमिंग टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव एसेज, स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चन है माइंड में तो प्लीज टेक अ पेज, write it on the page, and towards the end of the lecture you may ask those questions, but first let me finish with the lecture. Okay, descriptive essays क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव एसेज को हम कजन ऑफ नैरेटिव ऐसे, हम इसको नैरेटिव ऐसे का कजन भी कह सकते हैं। कजन का मतलब है कि ज्यादातर वो कुछ फीचर्स उनके कॉमन होंगे और कहीं कहीं पे वो डिफर करेंगे, ठीक है। सो वी कॉल इट अ कजन ऑफ द नैरेटिव ऐसे। अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेंट्स अ पिक्चर विद वर्ड्स। A writer might describe a person, place, object, or even memory of special significance. However, this type of essay is not description for description's sake. The description essay strives to communicate a deeper meaning through the description.
In a descriptive essay, the writer should show, not tell, through the use of colorful words and sensory details. The best descriptive essay appeals the reader emotions with a result that is highly evocative. अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव एसेस में हम क्या करते हैं? अच्छा, डिस्क्रिप्टिव एसेस को हम सिर्फ वर्ड्स, दीज आर नॉट जस्ट द वर्ड्स कि हम वर्ड्स को जैसे प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू हम अगर हम लिख रहे हैं तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है. नो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है. इट शुड बी इन सच अ वे कि जब राइटर वो ऐसे लिख रहा था, जो राइटर के जो इमोशंस थे, राइटर्स की जो फीलिंग्स थी, वो लिसनर में भी लिसनर में नहीं, रीडर में भी ट्रांसफर हो जाए कि जब रीडर उस ऐसे को पढ़े तो वो he goes through the same emotions, the same feelings which the writer has gone through while writing that essay. ठीक है, ऐसे होना चाहिए कि राइटर अपने ऐसे के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने कुछ ऐसी विकैबुलरी के थ्रू, ऐसे कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स, कलरफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स, एस्थेटिक वर्ड्स के थ्रू वो क्या करे, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को रीडर में ट्रांसफर करें. जिस तरह की ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप नॉवेल्स रीड कर रहे होते हो, तो अगर उसमें कोई ऐसा सीन आ जाए नॉवेल्स में जो बहुत ही इमोशनल होता है, इवन दैट्स हैपन विद मी, जब मैं नॉवल पढ़ रही होती हूँ और उसमें कोई बहुत इमोशनल सीन आ जाता है, कोई चीज इमोशनल पैराग्राफ पढ़ रही होती हूँ, तो आई स्टार्ट क्राइंग. व्हाई? बिकॉज देयर द राइटर सक्सेसफुल हो गया है अपने पर्पस में. राइटर का क्या पर्पस था कि वो इमोशनल सीन लिख रहा था, तो वो इमोशन उसने मुझ में ट्रांसफर कर दिए हैं. बिकॉज व्हाइल रीडिंग द सीन आई स्टार्टेड क्राइंग. उन्होंने, उस राइटर ने इतनी ब्यूटीफुली अपने वर्ड्स को चूज किया था कि वो फीलिंग्स मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई थी. एंड दिस हैपेंस ओनली विद द राइटर्स हु आर क्लियर इन देयर मीनिंग. ठीक है, जिनकी वर्ड सिलेक्शन बहुत सेलेक्टिव होती है, एंड दैट्स व्हाट constitutes a descriptive essay. Unlike narrative essays is all about events and about actions. ठीक है, वो events और actions के बारे में होते हैं, उसमें आप कोई स्टोरी नरेट कर रहे होते हैं. लेकिन डिस्क्रिप्टिव ऐसे आप किसी भी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख सकते हो, आप डिस्क्राइब कर सकते हो पर्सन को. फॉर एग्जाम्पल, जब हम फेमस पर्सनैलिटीज बचपन से हम लिखते आ रहे हैं कि राइट एन ऐसे ऑन Qaid-e-Azam, write an essay on Prophet, peace be upon him, write an essay on these like famous personalities. ठीक है, जब हम किसी पर्सनालिटी पे, किसी पर्सन पे हम ऐसे लिखते हैं, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे. बेसिकली हम उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं बाय ऑल देयर एस्पेक्ट्स, जितने भी एस्पेक्ट्स पॉसिबल है हम उस पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं. फिर हम किसी जगह को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी मेमोरी को, किसी भी चीज. लाइक देयर इज नो लिमिट डिस्क्रिप्टिव, कोई लिमिटेशन नहीं है, टॉपिक वाइज कोई लिमिटेशन नहीं है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में. हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्या चीज माइंड में रखनी है कि हमारी वर्ड चॉइस डिस्क्रिप्टिव ऐसे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ड चॉइस, कि आप किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हो. ठीक है, आपने बिल्कुल भी रूड, the word shouldn't be rude. वो मैनिपुलेटिव होने चाहिए, लेकिन वो रूड नहीं होने चाहिए. कहीं रीडर को ये ना पता चले कि here the writer is being rude. ठीक है, so this was about descriptive essays. जी, expository essays, just the fact. expository तो अगर आप नाम से देखें, ठीक है, so this is like exposing. expository is from exposing, यू आर एक्सपोजिंग समथिंग. ठीक है, आप किसी चीज को एक्सपोज करते हो. जब आप किसी चीज को एक्सपोज करते हो तो आप उसको ऐसे ही इन द एयर एक्सपोज नहीं करते. आपके पास फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, आपके पास सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बैकिंग आर्ग्यूमेंट्स होती है, तभी आप किसी चीज को, किसी पर्सन को आप एक्सपोज कर सकते हो. सो बेसिकली इन एक्सपोजिटरी एसेज यू आर एक्सपोजिंग समथिंग एंड देन यू आर रीडिंग, यू आर लीविंग इट टू आप फिर इसको रीडर पे छोड़ देते हो कि वो आखिर में रीडर क्या फैसला करता है. अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, इसकी एग्जाम्पल इसकी ये होगी कि अगर मैं मोबाइल फोन की, ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल फोन अलाउ होना चाहिए कैंपस के अंदर या नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर फिर इसमें मैं क्या करूंगी, फिर मैं पहले मैं खुद डिसाइड एज अ राइटर, फर्स्ट आई विल डिसाइड कि मोबाइल अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर जब मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, आई वुड से ओके होना चाहिए. ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मोबाइल कैंपस के अंदर अलाउ होना चाहिए. अब ये मेरा आंसर है. अब इसी आंसर को मैंने
सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है? मैं फैक्ट्स दूंगी, मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगी, कोई सपोर्टिंग डिटेल्स दूंगी कि ये वजह है कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जब मैं पूरी आर्ग्यूमेंट दे दूंगी तो फिर जब रीडर वो ऐसे को रीड करेगा तो शायद वो भी अपनी मर्जी कि वो मुझे सपोर्ट करे या ना सपोर्ट करें। कि अगर हम स्टूडेंट्स को अलाउ करें तो उनकी ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकती है, और अगर हम स्टूडेंट को कैंपस के अंदर मोबाइल अलाउ ना करें तो उसकी एडवांटेजेस या उसकी डिसएडवांटेजेस ये होगी। तो भाई बोथ एस्पेक्ट्स मैंने ऐसे को जॉट डाउन कर दिया है, मैंने ऐसे को लिख लिया है ना। दिस डिपेंड्स ऑन द रीडर कि वो इस साइड पे आता है या उस साइड पे आता है। ठीक है, मैंने उनको कन्विंस नहीं करना, आई एम नॉट कन्विंसिंग देम, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स कि ऐसा होता है इस साइड, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर ऐसे हो तो ऐसा होगा। ठीक है, अब राइटर की अपनी मर्जी कि वो किस साइड पे जाना चाहे। रीडर की either reader can agree with me or he can disagree with me. I will leave it on the reader. ठीक है, so this is expository essays. Expository essays के अंदर क्या होता है कि कुछ comparison and contrast essays होती हैं। comparison and contrast essays में क्या हो सकता है कि you might compare the वेस्टर्न एजुकेशन विद ईस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, आप वेस्टर्न एजुकेशन को ईस्टर्न एजुकेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो आप फिर फिगर्स भी दोगे, फैक्ट्स होंगे, आप रिसर्च करोगे। ठीक है, और आप एक अपना ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करोगे। कॉज एंड इफेक्ट एसेज हो सकती है। कॉज एंड इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर हम स्टूडेंट्स को कैंपस के अंदर फ़ोन अलाउ करते हैं तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन कॉज एंड इफेक्ट। अगेन वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हो सकती है। एंड देन how to or process ऐसे how to। चले हम मैं थोड़ी गर्लिश एग्जांपल आपको इधर दे देती हूँ। अगर कुकिंग इज अ प्रोसेस, कैसे बनानी है, हाउ टू, आपने फर्स्ट क्या करना है, आपने सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फोर्थ पे क्या करना है, फिफ्थ पे क्या करना है, फाइनली क्या करना है। सो दिस फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड इन द फाइनल, ये क्या होता है, ये आपका एक, अगर आपको ऐसी कई ऐसे नजर आए, आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा ऐसे है, और अगर आपको उसमें ये वर्ड्स नजर आए, फर्स्टली वी डिड दिस एंड देन सेकेंडली एंड देन थर्डली एंड देन फाइनली, तो वो होता है एक्सपोजिटरी एसेस। ठीक है, और ये इसमें कोई आपकी पर्सनल फीलिंग्स आपने ऊपर वाले इस टाइप में डिस्क्रिप्टिव एसेस में आपने देखा कि उसमें जो राइटर है उसकी फीलिंग्स और इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो फीलिंग्स और इमोशंस वो अपने रीडर में भी ट्रांसफर कर सके। लेकिन जो आपकी एक्सपोजिटरी ऐसे होती है वो आपके होली आपके फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, जो फैक्ट्स हैं। ठीक है, आप उसमें कोई आपकी पर्सनल फीलिंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अच्छा जी, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए, दैट इज परसुएसिव एसेज। ठीक है, परसुएसिव अगेन क्लियर फ्रॉम द नेम, कन्विंसिंग। आप इसमें ये आपकी आप इसमें जो राइटर है वो अपने रीडर को कन्विंस करता है किसी चीज पे। अगर ऊपर जो एग्जांपल मैंने ऊपर यूज किया एक्सपोजिटरी एसेज में, अगर मैं वही एग्जांपल यूज करूँ तो शायद आपको ये ज्यादा क्लियर हो कि देखिए एक्सपोजिटरी एसेज में मैंने आपको क्या टॉपिक दिया कि शुड मोबाइल फोन बी अलाउड फॉर स्टूडेंट्स ऑन कैंपस या इन कैंपस। ठीक है, लेकिन परसुएसिव एसेज को मैं ये और मेरा आंसर था यस इट शुड बी अलाउड। तो परसुएसिव एसेज में मैं अपने टॉपिक को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करूंगी? द टॉपिक वुड बी मोबाइल्स शुड बी अलाउड टू स्टूडेंट्स इन कैंपस। ठीक है, शुड अलाउड। ठीक है, मैं रीडर्स को परसुएट कर रही हूँ, उनको कन्विंस कर रही हूँ कि मोबाइल फोन अलाउड होना चाहिए। और फिर मैं पूरा जो मैं कुछ भी लिखूंगी, जितने भी मैं आगे एसेस में जितने भी पैराग्राफ्स लिखूंगी तो पैराग्राफ्स क्या होंगे, वो उसी को सपोर्ट करेंगे कि हाँ मोबाइल फोन अलाउड होना चाहिए। मेरा हर पैराग्राफ इसी पॉइंट पे आके रुकेगा कि हाँ मोबाइल अलाउड होना चाहिए। मेरी जितनी भी सपोर्टिंग पैराग्राफ्स होगी, जितनी भी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट होगी, वो सब इसी चीज को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी कि जी ये मोबाइल अलाउड होना चाहिए। तो इफ आई गेट सक्सेसफुल एट द एंड, तो वो रीडर क्या होगा, वो परसुएड हो जाएगा, वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ जी मोबाइल अलाउड होना चाहिए। सो दिस इज एक्सपोजिटरी एसेज में क्या होता है कि आप फैक्ट्स और फिगर्स बताते हो और फिर आप उसको रीडर पे छोड़ देते हो। लेकिन परसुएसिव एसेज में आप कहते हो कि नहीं, आपने बस जो मैं कह रहा हूँ आपने वही मानना है, आई एम राइट, आपने बस इसी चीज को सपोर्ट करनी है। ठीक है, अगर कोई अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूं तो ओके,
लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल मैं आपको, अच्छा चले मैं आपको स्मोकिंग के रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देती हूँ. परसुएसिव ऐसे, अगर एक की वर्ड है स्मोकिंग, ठीक है, अगर मैं इसके परसुएसिव ऐसे का टॉपिक क्या होगा कि स्मोकिंग शुड बी बैंड इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, स्मोकिंग शुड बी बैंड इन पब्लिक स्पेस प्लेसेस. लेकिन अगर एक्सपोजिटरी ऐसे का टॉपिक मैं बनाऊं इससे, तो वो होगा कि शुड स्मोकिंग बी बैंड इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है. तो फिर उसमें मैं येस और नो पे जाऊंगी. येस पे जाऊंगी तो सपोर्टिंग मैं फैक्ट स्टेट करूंगी. अगर मैं नो पे जाऊंगी, अगेन आई विल प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स. और तब आखिर में इट्स द रीडर्स चॉइस कि वो येस पे जाए या नो पे जाए, इट्स देयर चॉइस. लेकिन परसुएसिव एसेस में आई वुड से स्मोकिंग शुड बी it should be banned in public places. और फिर मैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू और अपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू फिर मैं रीडर्स को कन्विंस करूंगी कि आई एम राइट एंड you have to agree with my thought, ठीक है. So this was persuasive essays. अच्छा जी, coming towards the format of an essay. फॉर्मेट ऑफ एन ऐसे आप कह सकते हो, और या आप ये भी कह सकते हो कि स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे भी कह सकते हो इसको. सो एन ऐसे कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं एक ऐसे के. सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन. आपने अपने ऐसे की को इंट्रोड्यूस कराना होता है, ठीक है, सबसे पहले जस्ट इन अ पैराग्राफ. ये ऐसे का जो इंट्रोडक्टरी एक ही पैराग्राफ होता है उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. देन आपके आता है बॉडी, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आती है बॉडी. फिर बॉडी में आपको डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट, आपको कितनी वर्ड लिमिट आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके डिपेंडिंग आप 2 पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ्स, 4 पैराग्राफ्स, 5, 10, 20 जितने भी पैराग्राफ्स हो, ठीक है. अब फिर अब वो जितनी भी सारी पैराग्राफ्स होंगी, जो सब इसको हम सपोर्टिंग पैराग्राफ्स कहते हैं, जो आपके ऐसे का जो टॉपिक है उसको सपोर्ट करेगी, तो उन पैराग्राफ्स को हम कहते हैं बॉडी. एंड देन अगेन इन द एंड जस्ट अ पैराग्राफ, आपने कंक्लूजन लिखना होता है, जिसमें आप क्या करते हो, या तो वो इंट्रोडक्शन की तरह एक इंट्रोडक्शन का एक मिरर होता है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन थोड़े से वर्ड्स को ट्विस्ट करके आप इंट्रोडक्शन को लिख देते हो, या फिर आप अपने जो आपने सारी आर्ग्यूमेंट की होती है आप उसको समराइज करते हो और उसको कंक्लूड करते हो. लेट्स लुक इनटू डिटेल. इंट्रोडक्शन की डिटेल्स को देखते हैं. चलिए, इंट्रोडक्शन. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे. This is where the writer introduces his topic for the very first time. You can give a very brief synopsis of your essay in the introductory paragraph. There is plenty of scope to get creative in the introduction of essays. This will ensure that you hook the reader, that is, draw and keep his attention. So to do so, you can start with a quote or a proverb. Sometimes you can even start with a definition. Another interesting strategy to engage with your reader is to start with a question. Students, आप इधर फोकस करें कि जो आप जब ऐसे लिखते हो ना, तो आपका सबसे जो पहला पैराग्राफ होता है वो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, ठीक है. और आपको वही आपके पास एक चांस होता है जहां आप अपने रीडर को कन्विंस करते हो अपना पूरा ऐसे रीड करने के लिए, ठीक है. अगर आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, अगर वो कैचिंग होगा, अगर वो इंटरेस्टिंग होगा, तब ही आपका जो रीडर है वो आपके ऐसे को रीड करेगा. लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ही अगर वो बोर्ड होगा या अनइंटरेस्टिंग होगा, तो रीडर का दिल नहीं चाहेगा कि वो आपके ऐसे को रीड करे, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैराग्राफ को बहुत कैची बनाएं, बहुत उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, बहुत उसको एस्थेटिक बनाएं, ताकि वो रीडर को अट्रैक्ट करे, ताकि रीडर उसमें उसको रीड करे, ठीक है. रीडर का दिल करे, ताकि रीडर का दिल करे कि वो आपके ऐसे को रीड करे. अच्छा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लिखते क्या हो. सबसे पहले आप क्या करते हो, आपका जो टॉपिक होता है ऐसे का, आप सबसे पहले अपने टॉपिक को क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करवाते हो. ये आपके पास ये फर्स्ट चांस होता है कि आप रीडर्स को अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाओ, कि आपका जो आगे का जो पूरा ऐसे है, चाहे आपका 2 पेज ऐसे है, 3 है, 5 है, आपका 20 पेजेस का ऐसे है, वो किस चीज़ के बारे में है. तो आप सबसे पहले अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कराते हो. और इस इंट्रोडक्शन का सबसे एक कुछ टेक्निक्स है, कुछ स्ट्रेटजीज है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. ये है कि अगर आप अपने ऐसे किसी कोट, ठीक है, किसी फेमस कोट से आप अपने ऐसे को शुरू करें, कोई प्रोवर्ब आप यूज करें, किसी डेफिनेशन से स्टार्ट करें. और सबसे जो मुझे द टेक्निक दैट आई फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज,
अगर आप अपने ऐसे को किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ठीक है, अगेन दिस नॉट अप्लाई इन एवरी ऐसे, कुछ ऐसे को आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ को आप प्रोवर्ब से, कुछ को आप कोट से, कुछ को आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं खुद ऐसे को रीड करती हूँ ना, तो जिस ऐसे में सबसे पहले लाइन में क्वेश्चन होता है ना, बस वो ऐसे मुझे जो कैची लगती है ना, ऐसे मुझे कभी कोई ऐसे कैची नहीं लगी, अट्रैक्टिव नहीं लगी। सो इंट्रोडक्शन में यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर, ठीक है, you start it with a proverb, with a quote, with a question, with a definition, and that constitutes your introductory paragraph। और ये एक छोटा सा पैराग्राफ होता है 5 लाइन्स और 6 लाइन्स का, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, छोटा सा आपका पैराग्राफ होता है। लेकिन आपकी जो ऐसे का जो वेटेज है ना, वो सारा का सारा नहीं, लेकिन जो वेटेज है, जो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम मार्क्स की बात करें ना, तो इंट्रोडक्शन के मार्क्स की वेटेज आपकी ज्यादा होती है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे इज इंट्रोडक्शन। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम आते हैं बॉडी ऑफ द एसे पे। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ योर एसेज। The body is the meat of your essay, sandwiched between the introduction and the conclusion. So the most vital and important content of the essay will be here. This need not be confined to one paragraph. It can extend to 2 or more paragraphs according to the content. अच्छा, क्या होता है बॉडी? दिस इज ये जो आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपने क्या किया, आपने जस्ट अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, आपने आपने इंट्रोडक्शन दे दी कि मेरा जो ऐसे है वो इस टॉपिक पे है। लेकिन बॉडी में क्या करते हो, आपका जो ऐसे का दिस इज द मेन क्रक्स। देखिए, मेन क्रक्स ऑफ योर ऐसे है, जैसे कि ये बॉडी, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे पार्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करते हो कि अपनी सारी आर्ग्यूमेंट्स होती है, अगर डिस्क्रिप्शन है, आर्ग्यूमेंट्स है, अगर नरेशन है, ठीक है, एक्सपोजिशन है, जो भी आप उसको बॉडी के अंदर करते हो। और ये आपके टॉपिक पे भी डिपेंड करता है, वर्ड लिमिट पे डिपेंड करता है कि पैराग्राफ्स कितने हो सकते हैं। 2 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उधर आपसे ऐसे राइटिंग मांगी जाए तो 10 to 20 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट एंड द वर्ड लिमिट, कि आपने एक ऐसे की लेंथ को कितना रखना है, आप उसमें बॉडी के अंदर कितने पैराग्राफ्स आप लिख सकते हो, ठीक है। सो बॉडी में मेनली क्या होता है, आपका जो मेन टॉपिक होता है, जो आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस कराया होता है, तो आपका ईच एंड एवरी पैराग्राफ उसी टॉपिक को सपोर्ट करता है, ठीक है, डिटेल्स देता है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स देता है, या फिर फैक्ट्स फिगर्स होती है, तो वो सारी चीजें जो होती हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बॉडी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, कंक्लूजन में क्या होता है, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे। Sometimes a conclusion will just mirror the introductory paragraph, but make sure the words and syntax are different. A conclusion is also a great place to sum up a story or an argument. You can round up your essay by providing some moral or wrapping up a story. अच्छा, कंक्लूजन भी आपका जिस तरह इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है और एक ही पैराग्राफ होता है, इस तरह कंक्लूजन आपका लास्ट पैराग्राफ होता है और जस्ट एक ही पैराग्राफ होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, यू समराइज, आप अपने पूरे ऐसे को समराइज कर सकते हो। अगर टू मेक इट इजी फॉर यू, आप अपने इंट्रोडक्शन को, उसके वर्ड्स को, या फिर उसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, आप उसमें थोड़ा सा चेंज करके आप उसको कंक्लूजन बना सकते हो। और या फिर आप उस अपने पूरे जो आपने बॉडी लिखी होती है, आप उसको एक ब्यूटीफुल वे में समराइज करते हो और आप उसको कंक्लूजन बनाते हो। और यू कैन लाइक रैपिंग, जितनी इंट्रोडक्शन जरूरी है, जितना बॉडी जरूरी है, इसी तरह आप प्लीज म्यूट योर माइक्स प्लीज जी। तो जिस तरह कंक्लूजन कैची होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इस तरह आपका इंट्रोडक्शन कैची और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इस तरह आपका कंक्लूजन भी कैची होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, जिसमें एंड बेसिकली इट्स समरी ऑफ योर एसे। So this was conclusion of your essay. So हमने क्या पढ़ा आज? It was essay की कुछ definitions हमने पढ़ी, फिर हमने types of essays पढ़ी, 4 types essays पढ़ी, फिर हमने कुछ topics discuss किए कि किस topic के अंदर किस type के अंदर कौन से topics पे हम लिख सकते हैं, and then we discuss the format of the
ऐसे फॉर्मेट ऑफ द ऐसे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे, फिर उसके अंदर हमने उसकी 3 स्टेप्स कवर किए, दैट इज द इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड द कंक्लूजन. दिस वाज all about essay. G. Now, if you have any question regarding the lecture or any question regarding anything, you can ask me. अच्छा जी, वकारुल इस्लाम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम मैम ऐसे के अंदर हेडिंग्स दे सकते हैं. माय आंसर टू दिस इज अ बिग नो. ठीक है, एक बिग नो है. नहीं, आप ऐसे के अंदर हेडिंग्स ना दो, आपको हेडिंग्स देने की कोई जरूरत है ही नहीं. ऐसे के अंदर आप जस्ट अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराओ, बस सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स को पैराग्राफ वाइज जाते जाओ, उसको एंड में कंक्लूजन कंक्लूड करो. ठीक है, आपको ऐसे के अंदर कोई हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है. ये होता है कि हम बचपन से कुछ स्कूल्स में ये है कि ऐसे लिखवाते हुए हेडिंग्स लिखवाते हैं, कराते हुए वो हमें हेडिंग्स उन्हें करवाते थे. इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल हम भी ऐसे को इस फॉर्म में लिखते थे कि उसमें हेडिंग्स आती थी, लेकिन ऐसे के अंदर कोई हेडिंग नहीं होती. ओके, देयर इज नो हेडिंग इन ऐसे. जस्ट इंट्रोडक्शन को भी आप लिख नहीं, आप इंट्रोडक्शन को हेडिंग नहीं देते, बस आपका फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बाकी पैराग्राफ सपोर्टिंग होनी चाहिए और लास्ट पैराग्राफ आपका होना चाहिए कंक्लूडिंग. दैट शुड बी योर एसे, नो हेडिंग्स. शुड देयर बी एनी स्पेसिफिक यूज ऑफ ग्रामर और टेंसेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस? शुड देयर बी एनी स्पेसिफिक यूज? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है जी. ये क्वेश्चन है तैमूर का, तैमूर खान वजीर. अच्छा जी, ग्रामर का तो ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश में कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, रेज्यूमे लिख रहे हो, सीवी लिख रहे हो, कुछ भी अगर आप लिख रहे हो, तो ऑफ कोर्स यूज ऑफ ग्रामर होना चाहिए. यूज ऑफ ग्रामर इज वो तो सबके लिए एक ही जैसा है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेंस, तो आपके यूज ऑफ ग्रामर को अकॉर्डिंगली ही करना है. लेकिन अगर पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें, अगर हम पॉइंट ऑफ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें या सेकंड पर्सन पॉइंट या थर्ड पर्सन की, तो यस दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऐसे यू आर राइटिंग. फॉर एग्जांपल, अगर आप नेगेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो आप उसमें आप उसको कैसे लिखते हो? आपके जो लाइंस होते हैं वो आई से स्टार्ट होता है, आई दिस आई दैट, तो आप उसको फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे होते हो. सो यस, पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द essay, but the grammar and tenses that depends on the context of your essay. जी, someone else is also raising their hand. जी, अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं. चैट बॉक्स से ज्यादा अच्छा है कि आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोलें. सैयद इरफान, व्हाट्स द नेम? जी मैडम. जी, आपका पूरा नाम क्या है जरा मुझे बताएं. सैयद इरफान क्या? सैयद अल हसनी. अल हसनी, ओके, इंटरेस्टिंग. अच्छा जी, आपने अपना रेज किया हुआ है. डू यू वांट टू से समथिंग? मैडम मैंने किया तो नहीं है, लेकिन चलिए मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो हम इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी लिखेंगे उसमें हेडिंग्स दे सकते हैं? तो 2 हेडिंग्स या 4 हेडिंग्स? नो, आपके ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं आती. ओके, बिल्कुल भी नहीं आती. ये ऐसे लिखने का फॉर्मेट कोई तरीका है नहीं कि आप ऐसे के अंदर हेडिंग्स डालो. जस्ट आपने पैराग्राफ्स को ऐसे ही बाय टॉपिक्स के लिखना है, और आपके पैराग्राफ्स ऐसे होने चाहिए कि आपको उसमें हेडिंग देने की जरूरत ही ना पड़े. अगर कोई रीडर आपके पैराग्राफ को रीड करे तो उसको पता चल जाए कि ओके, दिस पैराग्राफ इज अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ठीक है, सो बेसिकली मींस जैसे आपने बॉडी में भी हेडिंग्स दे देनी होती. आपके ऐसे का फॉर्मेट ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसे का टॉपिक बताएं मुझे. चलो हेल्प मी. ह्यूमन राइट्स. जैसे हम ह्यूमन राइट्स पे लिख रहे हैं, ह्यूमन राइट्स पे लिख रहे हैं और जैसे इंट्रोडक्शन उसका लिखा, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद बॉडी की हेडिंग देंगे या डायरेक्टली हम जो है वो जी, आप क्वेश्चन करेंगे हम बॉडी की हेडिंग दे, यानी नो. ठीक है ना, आप बॉडी की हेडिंग दो ना, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दो ना, आप कंक्लूजन की हेडिंग दो. यू हैव टू जस्ट स्टार्ट. ठीक है, आपने इसको स्टार्ट करना होता है. नो हेडिंग्स. जैसे कि आपने अगर आप ऐसे लिख लो, आपने पेज के ऊपर लिखा ह्यूमन राइट्स, आपने एक टाइटल दिया ह्यूमन राइट्स एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द पैराग्राफ. ठीक है, नो हेडिंग्स इन ऐसे. स्ट्रिक्टली नो, अ बिग नो. जी, एनीवन एल्स? शुक्रिया मैम. तकरीबन कितने पैराग्राफ में ऐसे होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? अच्छा जी, पैराग्राफ की अगर हम लेंथ की बात करें तो डिपेंड्स, मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बता दिया कि डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट. अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि राइट एन एसे ऑफ 250 वर्ड्स की अगर आपको ऐसे लिखनी होती है तो आप उसमें क्या करते हो, आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डालते हो. ठीक है, नीचे 4-5 आपकी सपोर्टिंग पैराग्राफ्स होते हैं जो बॉडी होती है एंड एक कंक्लूजन पैराग्राफ होता है. लेकिन अगर आप सीएसएस का एग्जाम दे रहे हो और उधर आपसे कहे कि आप लोग कितने वर्ड्स का, आप 2000 या 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखें, तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट पे उधर आपके जो बॉडी होगी उसकी फिर पैराग्राफ्स भी ज्यादा होंगे. ठीक है, तो आपने कुछ चीजों को माइंड में रखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, वर्ड लिमिट की रिक्वायरमेंट क्या है और कंटेंट. अच्छा, कुछ इश्यूज हैं जैसे अगर नेगेटिव ऐसे है तो उसको तो आप क्योंकि आपका योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप उसको जितना आप उसको कर सकते हो. ऐसे में रिपीटेशन नहीं होती, आपने एक चीज को बार-बार नहीं बताना, लेकिन आप जितना लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो नेगेटिव ऐसे में. लेकिन अगर हम एक्सपोजिटरी एसेस की बात करें तो वो तो सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होती है, तो जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स है आप उसको एक्सप्लेन करो. वंस यू हैव एक्सपोज द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड दैट्स द लेंथ ऑफ योर एसे. ठीक है, तो कंटेंट पे और वर्ड लिमिट पे डिपेंड करता है. शुड ऐसे बी न्यूट्रल? तैमूर पूछ रहे हैं कि शुड ऐसे बी न्यूट्रल? न्यूट्रल एंड फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग अबाउट कश्मीर. अच्छा तैमूर, अगर आप मुझसे पूछे कि अगर आप कश्मीर पे ऐसे लिखे तो देखिए कश्मीर पे आप ऐसे कैसे लिखोगे? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? तैमूर, प्लीज अनम्यूट योर माइक सो दैट वी कैन डिस्कस इट बेटर. तो बच्चे आप लोग के माइक्स काम नहीं कर रहे. यू आर ओके, यू आर इन लाइब्रेरी. ठीक है, देन इट्स बेटर कि आपका माइक म्यूट ही रहे. ठीक है, देखिए तैमूर, अगर आप कश्मीर इशू पे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ना, तो वो आप कोई खुद से आप नहीं लिख सकते कश्मीर इशू पे. आपने क्या होता है, आपने रिसर्च करनी होती है, आपने आर्टिकल्स रीड करने होते हैं, आपने डिफरेंट साइट्स विजिट करने होते हैं, आपने कश्मीर का पास्ट प्रेजेंट स्टेटस फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, थ्रू यूजिंग द गूगल. ठीक है, इंटरनेट से या फिर लोगों से. ठीक है, तो आप एक रिसर्च करते हो, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो वो क्या होता है, वो तो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही लिखना होता है. तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे में तो आपने क्या होता है, आपने न्यूट्रल नहीं होना है. ठीक है, आप उसमें बाइस्ड नहीं हो सकते कि आप खुद से कुछ लिख दें. नो. ठीक है, तो अगर इश्यूज है तो इश्यूज को तो आपने ऐसे इश्यूज ही रिप्रेजेंट करने. हाँ, आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग सजेशन आप दे सकते हो, लेकिन यस यही होता है. ठीक है, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो चीज होती है तो उसमें आपको न्यूट्रल ही रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग बाइस्ड. मैम एक क्वेश्चन है कि हम जब ऐसे लिखेंगे तो क्या इंट्रोडक्शन से पहले हम जितने भी हमारे 10 पैरे हैं नीचे मींस के ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, तो हम क्या उन पैरों में जो डिस्क्राइब करने वाले एक्सप्लेन करने वाले क्या हम पहले उनको पॉइंट्स के थ्रू मेंशन कर सकते हैं? ये नो बच्चे, नो पॉइंट्स. जस्ट ऐसे. ठीक है, ऐसे अगर मैं खुद से अगर ऐसे की कोई डेफिनेशन बनाऊं तो उसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स. ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स होती है, आप उसमें पॉइंट्स नहीं डाल सकते. आपने अपनी जो भी बात करनी है आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में करें. ओके ओके मैम. जी.